Hello everyone. Today we are again continuing with our next topics, that is the stereochemistry. We already just taught you about the RS configurations of the diphenyl compounds and chirality in diphenyl compounds. But one thing is left, the one of the big misconceptions for the diphenyl compounds. What is the misconception related to the diphenyl compounds? Generally we are saying we taught you about the structure of the diphenyl, guys. So that is the structure of the diphenyls. But what happened? The diphenyls are totally just strictly its rotation is prohibited due to the available of this bulky group at which positions? This ortho position. So due to this ortho positions, their rotation is totally restricted. That pivot bond is not able to rotate this benching ring. Okay, so they always remain like to be this one. So what happened due to this bulky groups, this ring is not able to rotate right hand side as well as the left hand side, because here the bulky group is properly interact with each other. So if the compounds, if the biphenyl rings are not able to rotate left side, right side, or that ring is not able to rotate, that ring is also not able to rotate, so how they are forming their racemic mixture? So according to the concepts, if the biphenyl rings are not able to rotate, okay, so they are not able to form their racemic mixture. तो जनरली ये बोला जाता है कि जो डाइफिनाइल्स कंपाउंड्स होते हैं उनमें बल्की ग्रुप होने के कारण उनका रैसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशंस नहीं होता. बट few concepts is here or few factors is here affecting its racemization. इनका रोटेशन प्रोहिबिटेड होने के कारण के बावजूद भी इसमें क्या होगा? रैसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशंस होता है. How it is take place? Because they always present in a coplanar manner. But due to this bulky groups properly interact with each other, this ring is not able to rotate that side, and this ring is not able to rotate that side. So how does it form their racemic mixture? So today we are going to work on this topic. The topic is the racemizations of the biphenyl compounds. The first factors affecting the racemizations or enhancing the racemizations in biphenyl compound is heat. You know that heat is affecting the rate of reaction kinetically as a thermodynamically. What we are saying, if any reaction is following in forward directions, suppose these are reactant and they giving you a product, so they are facing an energy barrier, that is delta G. That delta G is known as the energy barrier. If the energy barrier is more and high, is intense, very intense peak is coming, so at that time the reactant required more heat to convert into the product. But what happened if we are providing more and more heat? At that time the reactant is capable to conduct these reactions more frequently when we are providing heat from outside. Same thing is going on here. यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जो रिएक्टेंट्स है एक्चुअली वो बल्की है. ओके, तो बल्की होने के कारण इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि रिंग क्या करे, अपने कोप्लेनर से प्लेनर स्ट्रक्चर को गेन करे. बट हम इसे यहाँ से इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि इस बल्की ग्रुप का जो प्रॉपरली हिंड्रेंस है वो नेग्लेक्ट हो जाए और रिंग क्या कर जाए? रोटेट. इफ द रिंग इज रोटेटिंग, इट गिविंग यू अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस. ये अगर R है तो थोड़ी देर बाद ये रोटेट होकर आपका क्या बना देगा? S बना देगा, जब इस पे रोटेशन पॉसिबल होगा. और वो पॉसिबल होगा when we applying a large amount of heat and decline its energy barrier. So by applying a heat, the heat is one of the most important factor helping to enhancing the formation of racemic mixture. तो यहाँ पे जो ये compounds है ये क्या करेगा? आपका जनरली racemic mixture बनाएगा जब हम इसकी heat बढ़ाएंगे. So heat is the one factor. So see, I am giving you one example. I am giving you one examples of the biphenyls. Suppose the one ring is here, एक ring आपका ये है, the another ring is to be like this. Okay, इसको जरा देखिएगा. ये आपके क्या है? कोप्लेनर रिंग्स हैं. यहाँ पे आपका क्या है? सपोज कोई बल्की ग्रुप्स है R, और यहाँ पे आपका क्या लगा है? H लगा है. यहाँ पे आपका एक बल्की ग्रुप्स है R towards the observer, and here is also H is here, and see that one is also a ring. इस रिंग का जो स्ट्रक्चर्स है, आई एम शोइंग यू बाय यूजिंग दिस मॉडल. ये रिंग जो है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, यानी कि ये रेड कलर की जो रेड कलर की बॉल्स है ये R आपकी तरफ है. इस तरह से ये रिंग का प्रेजेंटेशन है. अब ये रिंग है और ये रिंग क्या है? इसके प्लेन में है. ठीक है, अबव साइड्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग, हम इसको पहले क्या करते हैं?
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कैसे करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्लॉकवाइज भी करके देख लेंगे, हैव नो इश्यू। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ओके, सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं दैट्स मीन, तो ये क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज करने पे, ये आपका इस तरह से आई है रिंग, ओके। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सपोज इस तरह से है ये रिंग, इस तरह से मान लीजिए ये प्लेन में है, ये इस तरह से है, ये ग्रुप कहाँ है? अबव साइड है, जो आपका आर ग्रुप है ये अबव साइड है, और एच ग्रुप कहाँ है? बिलो साइड, और ये रिंग कहाँ है? प्लेन में। इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हम इसको थोड़ी इधर की तरफ रोटेट करते हैं, ओके। इफ यू आर गोइंग फॉर द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस, तो इसको हम थोड़ी इधर की तरफ को रोटेट करते हैं इस तरह से, बाय अप्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये रिएक्शंस कैसी है? एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है। तो इसको जरा एंटी क्लॉकवाइज हीट करने पे जनरली क्या होगा, इस तरह से रोटेट करने पे ये रिंग्स कोप्लेनर से प्लेनरिटी को गेन करेगी। अब देखिए इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनी उस केस में जो रिंग होगी, एक रिंग तो आपका ऐसे का सेम एज वेल एज रिमेन सेम, द अनदर रिंग इज रोटेटिंग कॉरेस्पॉन्ड टू दी अनदर रिंग। सो यहाँ पे आपका क्या रहा, द आर रिमेन एज वेल एज सेम एंड हाइड्रोजन आल्सो रिमेन एज वेल एज सेम, बट द अनदर रिंग्स को जब हीट करा तो उसने एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके आपका क्या फॉर्मेशंस करा, जो ये आर आपका अप साइड था इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके प्लेन में ले आए। अब दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, जो पहले इस तरह से थे कोप्लेनर, अब रोटेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे दोनों क्या आ गए हैं? प्लेन पे, लाइक टू बी दिस वन, ओके। सो सी, अब ये आर भी आपका प्लेन में है और ये एच भी आपका क्या है? प्लेन में। जो हाइड्रोजन अभी नीचे था वो इस तरह से रोटेट होकर प्लेन में आया। सो लुक एट हियर द आर इज अ बल्की ग्रुप एंड हाइड्रोजन इज अ स्मॉलर ग्रुप। तो यहाँ पे जो रिपल्शंस है वो थोड़ी क्या होगा आपका? वीक होगा, ठीक, थोड़ा सा वीक हुआ। अब फिर से इस रिंग को रोटेट करेंगे, फिर से ये रिंग क्या होगी आपकी? रोटेशंस की तरफ को मूव करेगी। तो फिर से इसको कैसा करना है आपका? दैट इज नोन एज दी ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। फिर से इसको आप क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने पे फिर से ये क्या गेन करेगा? कोप्लेनरिटी गेन करेगा। अब हाइड्रोजन कहां आ जाएगा? अबव साइड्स, और आर कहां दे दीजिए? नीचे। इसको फिर से क्या करेंगे? रोटेट करेंगे इस रिंग को एंटी क्लॉकवाइज की तरफ को, ओके। तो इस केस में क्या होगा? दैट रिंग शुड बी एक्वायरिंग इट्स ओन पोजीशन एज वेल एज सेम, दैट इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स। अब ये आर आपका ऐसा रहा, दिस हाइड्रोजन एज वेल एज रिमेनिंग सेम, द अनदर रिंग टू बी लाइक दिस वन। जो दूसरा रिंग फॉर्मेशन होगा उस केस में क्या होगा? ये हाइड्रोजन आ जाएगा आगे और आर कहां चला जाएगा आपका? पीछे। तो उसमें जो गेन हुआ is to be the hydrogen is moving on forward directions। अब हाइड्रोजन आपका कहां आ गया? फॉरवर्ड्स, और R कहां चला गया आपका? बैकवर्ड डायरेक्शंस की तरफ। So here the R is moving on forward directions and H is moving on the backward directions। तो अब देखिए पहला आपका क्या था? कॉन्फ़िगरेशन। सपोज अगर यहां से फाइंड आउट करते हैं, आपको मैंने डिस्टल और प्रॉक्सिमल रूल बताया था। सपोज अगर हम यहां से इसे ऑब्जर्व करते हैं तो दैट वन इज प्रॉक्सिमल एंड दिस वन इज डिस्टल। So the R is 1, the hydrogen is 2, R is 3 and hydrogen is 4. So we are rotating like to be 1, 2 and 3. So that one is anti-clockwise. तो ये कैसा था? S enantiomer था, okay? That is S enantiomer. So जो दूसरा वाला कंपाउंड्स आपका फॉर्मेशंस हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे। इसको भी जरा यहीं से ऑब्जर्व कर लीजिए। So that is a proximal and that one is a distal। अब इसका आप फाइंड आउट करिए, प्रायोरिटीज प्रोवाइड कराएंगे। So R is 1, hydrogen is 2 and this R is 3 and the hydrogen is 4। So that is giving you 1, 2 and 3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशंस क्या आया? R enantiomer formation हुआ। तो by applying the heat, we are by applying the heat in S enantiomers, okay? So that S enantiomer is able to convert into the R enantiomers। तो यहाँ पे जो hindrance create हो रही थी, जो रिंग को कोप्लेनर बना रही थी हीट प्रोवाइड करने पे, वो एक ट्रांजिशन स्टेट में आती है। इन द ट्रांजिशन स्टेट द बोथ आर प्लेनर, बट अगेन वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, दे अगेन गेटिंग अ coplanarity। But when they are again gaining a coplanar structure, at that time its configuration is R and before the reaction configuration is S।
तो एक ही कंपाउंड्स में, एक ही सॉल्यूशंस में you are getting the 50 amount of S enantiomer and few amount of R enantiomer, so that is known as the racemic mixture. So हमें क्या मिलता है, racemic mixture का formations दिखाई देता है when we applying heat. ये तो वो ट्रांजिशन स्टेट थी जो क्या है, स्टेबल. अगर आप चाहते तो इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते थे. ओके, अगर आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते इंस्टेड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो इस R को कहां घूमना पड़ता, इस साइड. सपोज, ओके, आई एम शोइंग यू वेयर इज द मॉडल, दैट वन इज, ये आपका कहां था, R अबव साइड था, हाइड्रोजन था. सपोज अगर आप इसको इधर से देखें और आप इसको इधर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट न करके क्या करते, क्लॉकवाइज रोटेट करते, लाइक टू बी दिस. तो देखिए ये रेड और ये रेड ग्रुप्स एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट ये बनती जहां पे दोनों आर क्या होते, एक दूसरे के फेस टू फेस होते. तो इस स्टेट को जरा हम इस तरह से बनाते हैं. दैट वन इज 1 2 3. ये आपका क्या था, H as well as remain same, क्योंकि ये रिंग रोटेट कर रही है proximal distal ring as well as remain in their own positions, that is R. फिर आपका क्या रहता, the next benzene is like to be this. यहाँ पे हाइड्रोजन्स कहाँ आ जाता, हाइड्रोजन्स के सामने, ओके, और R कहाँ आ जाता, R के सामने. तो ये तो रोटेट करने का आया, तो दोनों जो ये आपका स्ट्रक्चर्स बना, ये क्या बना, प्लेनर स्ट्रक्चर. ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन. ओके, अब आप मुझे ये बताइए, ये ट्रांजिशन स्टेट तो तब बनी जब हमने कैसे रोटेट करा, क्लॉकवाइज. ओके, अब ये कब बना, एंटी क्लॉकवाइज. तो किस रोटेशन से आपको स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट मिली. Here the bulky groups are not so close to each other, so here the bulky groups are opposed to each other, okay, opposite sides. So that state is known. यहाँ पे interactions जो था bulky और bulky groups का वो था सबसे कम. So that's why the energy of this transition state is very very low. But what happened here? See, if we are rotating this S enantiomer according to the clockwise, here in the transition state we are getting the both bulky groups is face to face each other. जब बल्की ग्रुप फेस टू फेस आ गए, ठीक है, तो जब बल्की ग्रुप फेस टू फेस जनरेट हो जाते हैं, तो बल्की ग्रुप के फेस टू फेस होने से उनके बीच में क्या क्रिएट होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, लाइक दिस. ये बल्की ग्रुप सेम है, सो दे कॉजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस. एट दैट टाइम द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन एनर्जी इज टू मच हाई. और जिस कंपाउंड की ट्रांजिशन एनर्जी हाई हो और वो ट्रांजिशन स्टेट क्या कहलाती है, अनस्टेबल, तो उसके थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, अनस्टेबल. But in the previous one, in the anti-clockwise, the energy of the transition state is very low due to the less repulsion. So that's why the product is formed by this transition state is also very stable. So guys, this is the another factor is affecting or enhancing the racemizations in case of the biphenyl chiral compounds. तो ये नहीं कह सकते कि it is not responsible to the formations of the racemization. होगा, बट हमें उस एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा. उस एनर्जी बैरियर को कैसे क्रॉस करेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड. वहां बाहर से हीट प्रोवाइड करके उसके एनर्जी बैरियर को क्रॉस करा जाएगा. इट मींस वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्ट रिलेटेड टू द बाइफिनाइल की ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशंस नहीं करते, दैट इज फॉल्स. They are capable to form their racemic mixtures in both conditions if you are rotating anti-clock as well as the clockwise. Okay, they are capable to form R enantiomer through this S enantiomer, और आप R से भी क्या बना सकते हैं, S बना सकते हैं. That is the first factor affecting or enhancing the rate of enantiomer formation और racemization formation. तो ये racemic mixture बनाने का पहला ऐसा फैक्टर था जो डाइफिनाइल को racemic mixture में कन्वर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक, हीट पहला फैक्टर था. अब दूसरा फैक्टर देखिए, here we are talking about the another factor. The another factor is helping us. The another factor is helping us the formations of the racemic mixture in case of the biphenyl chiral compound is meta substitution, meta substituting group. Here is the one of the another factor. The second factor is meta substituted group. हाँ, सुनने में थोड़ी अजीब लग रहा है. मेटा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, यहाँ पे तो पहले ये बताया गया था कि ऑर्थो वाला इफेक्ट करता है, और मेटा कहाँ से आ गया. सो हियर द पोजीशंस ऑफ मेटा in both phenyl group is occupied by a bulky group. It is also affecting the rotations. Okay, how it is affecting, I'm giving you one example. Look at here,
So guys, this is a biophenyl. You know the chiral biophenyl का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कोप्लेनैरिटी स्ट्रक्चर्स को आपका शो करेगा. That is the another structures of the, okay, that one is ये आपका another, ये कोप्लेनर है, परपेंडिकुलर से एक दूसरे के. So here suppose I am adding NO2 groups, okay, ये NO2 groups है और दूसरी साइड जो है वो आपका मैंने क्या लगा दिया, आपका CH3 ग्रुप्स अटैच कर दिया. ये प्लेन्स में है, ये अबव साइड्स है. दैट ग्रुप्स इज जनरली कंटेन योर Br bromine, okay. The another one contain, that is also biggest I, but it's not I, it's a different groups. This one is OMe, okay, and behind this contain NO2 groups. See the meta positions. That one is meta. Okay, this one is meta. What happened? Here is also, if you are providing more amount of heat, जब हम इसमें more amount of heat pass करेंगे तो ये compound भी क्या करेगा, energy barrier को cross करते हुए rotate करेगा. But here the rotations of the ring is affected by this and this bulky group. इसको तो वो क्रॉस कर लेगा, बट व्हाट अबाउट द मेटा ग्रुप्स? हियर द कंपाउंड्स कन्वर्ट देमसेल्फ इन सच अ वे, यहां पे कंपाउंड्स दो तरह से अपने आप को कन्वर्ट करेगा. ठीक है, दैट वन इज रिंग, अनदर रिंग, ओके. सो ये क्या है आपका CH3, ये क्या था आपका Br. द अनदर वन इज नाइट्रो ग्रुप इज हियर एंड दिस वन इज आल्सो नाइट्रो ग्रुप्स. तो इस केस में मेटा पोजीशंस में बल्की ग्रुप्स होने के कारण जो OMe होगा वो Me पीछे को ना ओरिएंट करके कहां को ओरिएंट करेगा, आगे की तरफ को. At that time the OMe orient themselves in a such a way they creating a more hindrance. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेटा पोजीशंस पे अगर तो आपका कोई बल्की ग्रुप्स अटैच्ड है, so this bulky group affecting the position of ortho substituting groups. At that time the ortho substituting groups arranging themselves or orient in a such a way they feeling a less repulsions. तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेट होगी, ये स्टेट कैसी होगी, that transition state is highly energetic, okay, as well as the unstable. तो इस तरह की कंडीशंस में ये कंडीशंस जो रेसिमिजेशन प्रोसेस है उसको क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं. सो इन दिस प्रोसेस इफ यू वांट टू कन्वर्ट द सच टाइप ऑफ कंपाउंड इनटू द अनदर रेसिमर, सो ड्यू टू द अवेलेबल ऑफ दिस बल्की ग्रुप NO2 एट मेटा पोजीशन दे टोटली इनहिबिट the formations of the racemic mixture. तो मेटा पोजीशंस में बल्की ग्रुप होने के कारण वो ऑर्थो ग्रुप की ओरिएंटेशंस को अफेक्ट करेगा, जिससे जो बनने वाला रेसिमिक मिक्सचर है वो बहुत कम बनेगा. Why? Because here the transition state is highly energetic due to the repulsion in between meta as well as ortho groups by on this ortho substituting group. इसका जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप्स है वो सामने वाली रिंग के ऑर्थो और बिहाइंड मेटा के बल्की ग्रुप्स होने के कारण क्या होगा, अफेक्ट होगा, जिससे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो इसके थ्रू जो रेसिमिक मिक्सचर्स मिलेगा आपको वो क्या बनेगा, वेरी लेस, वो क्या होगा आपका वेरी माइनर, गिविंग यू अ माइनर. बट सिमिलरली सपोज दूसरी रिएक्शंस देखिए, इसी का सब्स्टिट्यूट, इसी का दूसरा फॉर्म. If suppose if you are taking the benzene ring like to be that, अगर आप इस तरह से another biphenyl ring लेते हैं और उसमें कोई और ग्रुप जोड़ते हैं, मेटा पोजीशंस पे जो बल्की ग्रुप्स है उसको हटा देते हैं, this one. So यहाँ पे आप क्या करें, इसका Br, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा है, केवल H, और इस केस में आप क्या जोड़ दीजिए, OMe, okay, and here we are again adding one Br. और इस कंपाउंड्स को क्या प्रोवाइड करिए, हीट प्रोवाइड करिए. अब देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड्स होगा वो OMe वो अपने आप को आगे की तरफ ओरिएंट नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज इन फ्रंट ऑफ दिस रिंग, ओके, यहाँ पे जो NO2 है वो इसको रिपल करेगा. तो Me अपने आप को कहाँ ओरिएंट कर लेगा, बैक साइड. अब कैसे ओरिएंटेशन होगा देखिए जरा. That one is the ring, this one is NO2. And the downward is known as the CH3 guys. The another one is अब देखिए इसमें orientations देखिए.
and you just identify the which orientations is better for the formation of the racemic mixture। और आप ही बताइए कि कौन सा जो ऐसा orientations है जो racemic mixture formations को क्या करता है, अलाउ करता है। C, due to the available of the bulky group at meta position, this O and E is orient themselves in a such a way they cannot be feel any kind of repulsions by NO2. But here in that case, at the meta positions, no bulky group is here. Only a small group hydrogen is here. So O and E is not able to arrange themselves towards this NO2 at that time. Due to the less hindrance of the meta positions, the O and E arrange themselves in a right way, in the right orientation। तो यहाँ पे जो O and E होगा वो अपने आप को मेटा पोजिशंस की तरफ अरेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो कोई भी हिंड्रेंस फेस नहीं करेगा, बिकॉज द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी वेरी स्टेबल। और इस ट्रांजिशन की जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, वेरी वेरी लो। अब ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल है तो इससे बनने वाला आइसोमर भी क्या होगा, स्टेबल आइसोमर फॉर्म होगा। और जो enantiomer बनेगा we say, और जो another enantiomer is formed by this reaction is a stable enantiomer। So that's why I am saying the meta substituted group is also affecting or just playing a very negative role to the formation of racemic mixture in case of the biphenyl chirally active compounds। तो इस तरह से जो पोजीशंस है वो वेरी करती है कि मेटा पोजीशंस पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हुई तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इंक्रीज होगी, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वेरी वेरी लेस, बिकॉज दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जीज इज नॉट अवेलेबल। सो यहाँ पे ये कंडीशंस जनरेट हुई थी कि यहाँ पे क्या हुआ, इसके मेटा पोजीशंस पे आपका एक क्या लग गया, बल्की ग्रुप्स। So due to the available of this bulky group, suppose this one is bulky group, तो ये इसका repulsions face करेगा और क्या होगा, hindrance create होगी। Okay, so but in the another one case, if no bulky group is available at the meta position, so they are also not affecting the formation of racemic mixture। तो यहाँ पे आपका racemic mixture ज्यादा बनेगा, या आपको major racemic mixture देगा या आपको minor racemic mixture देगा। तो major minor यहाँ किसके behalf पे है, the substituted group at meta positions। Okay, so these factors are also affecting the affecting the formation of racemic mixture। And the third but and the last one is para substituting। Okay, we say para substituting। Okay, the para position is also affecting or enhancing the formation of the racemic mixture। Suppose I'm giving you third one is para substitution। The para substitution is also affecting and enhancing the formations of the racemic mixture in case of biphenyl compounds। So see, I'm giving you one example in case, okay, so what happened in that case, that is another ring, that one is another ring। Okay, so here is a two kinds of groups are available। Here we are working according to the withdrawings and donating, so such kind of effects are also available, they are also affecting the rate of reactions। Okay, यहाँ पे suppose आपका एक compounds कोई ऐसा functional group जुड़ा है जो some functional groups are donating as well as the accepting the rate of reactions। Okay, here is also, so first of all we are talking about the electron donating groups। सपोज अगर पैरा पोजीशंस पे कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा है। टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। समटाइम्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज आल्सो देयर एंड समटाइम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज आल्सो देयर। सपोज इफ हियर द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स दैट इज CF3 and here is also CF3। so generally coplanarity जनरेट कर लेते हैं। ओके, this pivotal bonds is not able to rotate here, okay, due to the availability of this CF3 and CF3। ये CF3 ग्रुप्स अवेलेबल होने के कारण बल्कि ग्रुप्स, तो इसका जो रोटेशंस होता है वो क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। So that's why they are acquiring a
कोप्लेनरिटी। अब कोप्लेनरिटी अक्वायर है तो वही कंसेप्ट अराइज हुआ कि यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशंस नहीं होगा। बट जनरली व्हाट हैपन, अगर सपोज रिंग से और दोनों बाइफिनाइल रिंग से कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो इसका फंक्शंस क्या होता है, दे डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, दिस इलेक्ट्रॉन इज कमिंग हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग हियर। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज मींस हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो एट दैट टाइम द रिंग इज नॉट एबल टू रोटेट प्रॉपर्ली। और वैसे भी ये क्या कर रहा है, एक कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर में तो बल्की ग्रुप भी क्या करेंगे, बल्की ग्रुप भी क्या करेंगे, उसको रोटेट नहीं होने देंगे, तो उसको अपनी प्लेनरिटी क्या करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। इस रिंग को अगर आप कोप्लेनर रखेंगे तो बल्की ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मगर इसकी कोप्लेनरिटी को तोड़ के थोड़ी सी ऐसे प्लेनर रिंग से नीचे ले आइए तो अब ये रोटेशन शो कर सकता है। कैसे, एक रिंग तो आपके प्लेनर में रहेगी, जैसे ही ये sp2 से sp3 होगा तो ये प्लेनर ना होकर क्या हो जाएगा, बैंड, बिकॉज sp3 इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो sp2 से sp3, sp2 में ये ऐसा रहेगा और sp3 में इट शुड बी बैंड। ओके, अपनी प्लेनरिटी को छोड़ देगा एंड इट शुड बी बैंड। अब देखिए जैसे ही ये बैंड होगा इन दोनों ग्रुप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। एट दैट टाइम दे एबल टू इजीली रोटेट एंड रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, वो यहाँ पे हुआ है। अब देखिए क्या फॉर्मेशन हुआ। In the another case, it will be forming, that is double bond. This is X. This is CF3. The another one is, this one is also CF3. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर जाने से क्या हुआ, प्लस चार्ज आया आपका, bond is here, but one bond is remaining here. At that time, its hybridization is sp3. sp3 हाइब्रिडाइज होने से अब इसमें कोई भी प्लेनरिटी या कोप्लेनरिटी डेवलप नहीं है, ये बैंड हो जाएगा। कैसे बैंड होगा जरा देख लीजिए, इट्स टू बी इज बैंडिंग लाइक दैट, जैसे x रहा आपका और ये आपका CF3 रहा। द नेक्स्ट वन इज, अब ये बैंड होगा तो ये इस तरह से बैंड हो जाएगा क्योंकि अब ये प्लेनर नहीं रहा, बिकॉज एट दैट टाइम देयर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज कार्बन इज sp3। ओके, अब ये बैंड हो गया तो अब CF3 और CF3 के बीच का जो इंटरेक्शंस है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पे जो इंटरेक्शंस है इट्स वेरी लेस बिकॉज ये अब ऐसे रोटेट करेगा। सो व्हाट हैपेंड, एट दैट टाइम द CF3 इज एबल टू कन्वर्ट एंड एक्वायरिंग अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्रांजिशन बनाएगा, फिर रोटेट होगा। तो सपोज अगर पहले ज्योमेट्री क्या थी, अगर यहां से ऑब्जर्व करूं, यहां से यहां ऑब्जर्व करूं तो दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो पहले ये रोटेट करा 1 2 3 यानी कि ये था S। आफ्टर कन्वर्टिंग जब ये CF3 इस तरफ से मूव करके इस तरफ आ जाएगा, सो दे गिविंग यू व्हिच प्रोडक्ट R। तो यहाँ पे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या है, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अवेलेबल एट विच पोजीशन, पैरा पोजीशंस ऑफ द बाइफिनाइल रिंग। अगर दोनों बाइफिनाइल रिंग की पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो, सो दे हेल्प टू destroy its coplanarity and helpful to move the one ring corresponding to the another rings. And when they are able to move and losing their coplanarity, it means they are responsible to the formations of the racemic mixture. हमें करना क्या है, हमें तो उसको बस रोटेट कराना है और जहां से लेस हिंड्रेंस के कारण वो रोटेट हो जाएगा तो उसकी कोप्लेनरिटी टूट जाएगी और वो आपको रेसिमिक मिक्सचर देगा। तो इट मींस अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कौन सी कंडीशंस है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इट्स मींस इफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच एट द पैरा पोजीशन ऑन बोथ फिनाइल रिंग, they always enhancing the formations of the racemic mixture। किसकी बात हो रही है, डोनेटिंग। अब विथड्रॉइंग की देख लेते हैं। ओके, then we are talking about the electron withdrawing groups at which positions, at the para positions। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की पैरा पोजीशंस पे देखिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, गिविंग यू द सिमिलर एग्जांपल। इसी ग्रुप्स में, इसी कंपाउंड्स में जरा विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं, NO2 लगा देते हैं। हियर इज आल्सो CF3, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड द अनदर वन इज आल्सो इज टू बी लाइक, ये आपका कोप्लेनर स्ट्रक्चर्स में चला जाता है। Also that one is the next one is here, he is also CF3 and we are also attached one NO2।
अब NO2 ग्रुप्स का आप अगर प्रॉपर्ली पूलिंग डायग्राम्स बनाते हैं, इसको कहते हैं पुश एंड पुल ज्योमेट्री। इसे क्या बोलेंगे? पुश एंड पुल मैकेनिज्म्स। So what happened? The nitro group is pulling electron here, this electron is coming here, and this electron is going there. Okay. At the same time, that electron is moving here, and this electron is moving here. अब देखिए, इसकी तो हमने ज्योमेट्री करनी थी डिस्ट्रॉय, वहां लाना था सिंगल बॉन्ड, मगर वहां डेवलप कौन सा बॉन्ड हो गया आपका? डबल बॉन्ड। तो देखिए कैसे बॉन्ड डेवलप हुआ इसके बीच में। That one is NO2 single bond, that one is ring. Okay, this bond is coming here, this one is here, and here this bond is coming there, so it is developing our double bonds. Okay, this one is double bond guys, और यहाँ पे भी double bonds, and O negative and O negative is a positive charge again. So why the positive charges should be remain as well as the same. So see, यहाँ पे CF3 ग्रुप था, आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे भी CF3 है। अब ये रोटेट कैसे करेगा? The rotation is totally prohibited. Why? Because they develop a double bonds, and it is very difficult to destroy this double bond geometry. So due to the formations of the double bonds, पहले तो already restriction था CF3 के कारण, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, तो और भी रोटेशंस क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड हो गया। It means if the electron withdrawing group available at the para positions in biphenyl chiral active compounds, they totally destroying the formations of racemizations or not enhancing the formation of racemization. So today we have done why and in which conditions the biphenyl chiral active compounds are optically active in nature. So enhancing the racemization in biphenyl compounds, chiral compounds, the formation of racemization enhancing by applying heat, and the substituent at meta positions, and also affected by the substituent at para positions. If the rotating group is there, they behaving like they helping to rotate this both phenyl ring in a coplanar to a planar. At that time, if they are able to rotate properly and without facing any hindrance, they giving you a proper racemic mixture. But instead of this, and in spite of this, if an electron withdrawing group are here, so they are not affecting, they are totally restricting the rotations of both ring, and at that time the racemic mixture is not forms. Okay, so that these factors are affecting the racemizations in biphenyl chiral compounds. So that's all for the day. In the next topics, in next stereochemistry, we are working on adamantane and ANSA type of compounds. Thank you.